कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट फाउंड आउट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। बट अब बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं। मेरे ऑफिस का क्या होगा, मैंने ट्रैवल की बुकिंग करा रखी है, क्या मैं ट्रैवल कर पाऊंगी? मेरा चाइनीज़ खाने का बहुत मन करता है, क्या मैं चाइनीज़ खा पाऊंगी? और अब मेरी योगा क्लासेस का क्या होगा? रिलैक्स, you just got the good news. Let it settle down and make sure that you watch this video till the very complete end, because I promise after this video you will be clear about do's don'ts of the first trimester. मैं आपको इतनी information देने वाली हूँ कि आपको पता चल जाएगा that how to take care of your body during the first trimester of your pregnancy. Hello dearies, I am Nidhi, mother of 2 boys, 7-year-old and 2-year-old, and on this channel I share my personal experiences and my research work to help in the parenting journey of yours. For those who have come here for the first time, please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon so that you can get an update whenever I upload a new video. I generally upload on every Wednesday. And without any ado, let's quickly dive into the video, because this video is gonna be little long and we're gonna discuss whole of the information in 3 parts: the do's of the pregnancy, the don'ts of the pregnancies, and some information about miscarriage कि miscarriage exactly होता क्यों है. So without delaying, let's quickly get into the steps. What exactly are the do's? The first step that you need to take is to visit your doctor. You know what? The time you discovered that you're already expecting, 4 to 5 weeks are already gone, because the pregnancy is actually calculated from LMP, that is last month period. Yes guys, और आपको डॉक्टर्स के पास जाने से ये पता चल जाएगा कि if your pregnancy is going all right. That's number 1. Number 2, she will put you on kind of medications and probably folic acid. The gynecologist will lay out the guidelines कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना, और आप उनसे अपना डाइट चार्ट भी ले सकते हैं. Number 2 on my list is start with folic acid and calcium. If you've not yet started on folic acid and calcium and you're not able to visit your doctor right away, please do start on folic acid. Actually helps in the development of the child. It actually creates a better environment for the development of the child. Calcium provides you the strength, that's number 1, and calcium will actually avoid any weakness that will come across during the pregnancy. So start on your medications ASAP. Next step is to stay active and yet rest. सो गाइज, जो स्टार्टिंग में आपके दिमाग में क्वेश्चन थे कि क्या मैं जिम जा पाऊंगी या नहीं, या क्या मैं ऑफिस जा पाऊंगी या नहीं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं. आपको पता है, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज़ सपोज टू बी देयर. सो देर इज़ नथिंग दैट यू हैव टू स्टॉप, एक्सेप्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. तभी मैंने बोला स्टे एक्टिव बट टेक रेस्ट. वॉट आई मीन बाय दैट इज़ यू हैव टू स्टे एक्टिव. यू कैन गो टू योर जिम, यू कैन गो टू योर योगा सेंटर्स, बट यू हैव टू रेस्ट इन बिटवीन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आप योगा और जिमिंग पहले से कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उसे नया स्टार्ट मत कीजिए. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, योगा is very good, especially breathing exercises and meditations, but heavy yoga like power yoga आप avoid कीजिए. जिमिंग में भी वेट ट्रेनिंग है या कार्डियो है, आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए. मेक श्योर कि आप जिमिंग में सिंपल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. पिलाटेस यू कैन डू, सम फ्लोर एक्सरसाइजेस यू कैन डू, एंड ट्रस्ट मी गाइज, देयर इज अ मिथ अटैच्ड कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए. उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी जो इसके बाद आएगा, एंड यू कैन नो some myths that are attached to pregnancy. But as of now, you can actually work out, still rest. You can go to your office, you can travel, but make sure कि आपकी राइड बहुत बम्पी ना हो. अगर आप मोटर बाइक से या किसी 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं तो मेक श्योर कि आप रोड थोड़ी सेफ लें. अगर आप कैब से ट्रैवल करते हैं, मेक श्योर आप कैब ड्राइवर को बोलिए कि आप वो थोड़ा स्लो चलाएं या वो थोड़ा देख कर चलाएं, दैट यू डू नॉट एंड अप बीइंग बम्पी इन द पिट्स दैट वी हैव अक्रॉस इंडियन रोड्स. उसके अलावा भी आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आपने कोई वेकेशन ऑलरेडी प्लान कर रखी है, या ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं. एनीथिंग दैट इज स्मूथ यू कैन ट्रैवल, बट जस्ट इन केस यू हैव सम काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या फिर आपकी प्रेगनेंसी IVF के थ्रू है या किसी और मेडिकल टर्म या मेडिकल कंडीशन के अंडर है, सो यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर विजिटिंग और बिफोर ट्रैवलिंग. Next pointer that you need to do is plan your sleep or plan a nap during the day.
बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा नींद आती है, दे फील लेथार्जी, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट बिकॉज योर बॉडी इज़ पुटिंग इन ऑल इट्स स्ट्रेंथ इन मेकिंग द बेबी. You might feel lethargic, you might feel sleepy. So if you're working mom or if you're going to office, you have to plan a nap during the day and make sure that it is before 5 because अगर आप 5 बजे के बाद लेटते हैं तो आपको रात को हो सकता है नींद आने में प्रॉब्लम हो. तो प्लान योर नैप. और 20-minute nap to 45-minute nap is more than enough to revitalize your body. There are many sleeping positions during pregnancy. Try to sleep on the left side in a slanting position. You don't have to sleep on the back, though आप बैक पर भी सो सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, बट अगर आप लेफ्ट साइड को करवट लेकर सोते हैं then it is more beneficial for you and the baby. Next do that you need to do and a very important is plan your diet. Why I am saying that planning your diet is important? Because you are in the process of making a baby and it might happen that in the first trimester you might not feel hungry at all. There is a good chance that you might be experiencing nausea or vomiting or a sensation in your gut विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. और ऐसे में डाइट को प्लान करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज नंबर 1 you are not liking anything to eat. Number 2, it might happen because of vomiting, you are not able to sustain anything in your belly. And number 3, because हमारी body is already in a continuous process of making a baby, you might feel weakness or letharginess. So having good food is at most important. आप अपनी डाइट को प्लान कीजिए. अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, आप 2 आवर्स में कोई भी लिक्विड डाइट या कोई भी सॉफ्ट सॉलिड्स ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको वॉमिटिंग या नॉजिया नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल डाइट पे रहिए. जी हाँ, अगर आप चाइनीज़ भी खाना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू अवॉइड outside food because it has Ajinomoto in it. Just in case you want to have Chinese, you can make it at home and you can always चेरिश दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, खाने में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गर्म चीज़ें मत खाइए बिकॉज इससे बेबी की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, या फिर स्पाइसी फूड मत खाइए, अगेन मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं. दे ऑल आर द मिथ्स. द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि ऑलरेडी आपके गट में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन हैम्पर हो चुका होता है. उसलिए आपको लाइट फूड खाने को बोला जाता है, ठंडा फूड खाने को बोला जाता है, क्योंकि वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. एनीथिंग स्पाइसी और समथिंग विद हॉट टेम्परामेंट माइट लीड टू इन्फ्लेशन इन योर बॉडी एंड माइट लीड टू गैस. तो आपको डाइजीन खाना भी अलाउड है, बट ट्राई कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए, हम लाइट फूड पे रहें, फ्रूट्स खाएं. इट्स द समर्स टाइम. आप बनाना खा सकते हैं, आप मैंगो खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट्स खाइए, आप कोई भी वेजिटेबल खाइए. देयर इज़ नो बैरियर टू ईटिंग. जस्ट मेक श्योर दैट यू प्लान योर डाइट अकॉर्डिंगली. ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी. मुझे डॉक्टर ने एक हैप्पी HAPPI करके एक मेडिसिन दी थी और वो खाने के बाद मेरा पूरा दिन हैप्पी हो जाता था एक्चुअली, बिकॉज उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉजिया फीलिंग नहीं रहती थी. सो जस्ट इन केस आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की इशू है या जस्ट इन केस आपको बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग फीलिंग है, यू कैन आस्क योर गायनोकोलॉजिस्ट एंड शी विल हेल्प यू रिलीव दैट. The 5th on my list is plan your COVID vaccine. The most important do today is plan your COVID vaccine. जी हाँ, हम कोविड टाइम्स में हैं, हम पैंडमिक टाइम्स में हैं एंड देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग अ रिस्क. जस्ट इन केस आपने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अब गवर्नमेंट ने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी वैक्सीन अलाउ कर दी है और आपको कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए. दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर योर बेबीज सेफ्टी एज वेल. मेक श्योर you talk to your gynecologist and make sure that you get the shots done. Now let's talk about don'ts. Don't smoke or drink. बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऐसा पूछती हैं कि क्या हम एक पफ ले सकते हैं, क्या हम एक 30 ml का पैक ले सकते हैं. बट गाइज, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ इन एनी सिचुएशन, बट प्रेगनेंसी में और भी फीटल हो जाती है. बच्चों को इससे मेंटल डेवलपमेंट में भी हार्म होता है और फिजिकल डेवलपमेंट में भी हार्म होता है. देयर आर मेनी मेडिकल कंडीशंस दैट कैन हैपन टू योर चाइल्ड एंड देयर इज़ नो लिमिट दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स आपको ज़रूर बोलेंगे कि आपको एब्सोल्यूट नो करना है स्मोकिंग को और ड्रिंकिंग को, और वो जरा सा वाला जो लालच होता है वो आपको अभी एज ऑफ नाउ छोड़ना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज डोंट यूज़ मच कैफीन. बहुत सारे लोग होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं अपनी कॉफ़ी या चाय पर, बट गाइज, कैफीन इज़ इंजूरियस टू बेबीज़ हेल्थ.
Do you know that there is a limit to a caffeine intake that you can take during pregnancy, that is 200 mg. सो जस्ट इन केस यू आर रियली एडिक्टेड, तो आप अपनी वो कैफीन लिमिट 1 कप चाय तक रखिए या 1 कप कॉफ़ी तक रखिए. चाय और कॉफ़ी के अलावा भी चॉकलेट्स में होता है या और चीज़ों में भी होता है. सो यू हैव टू लिमिट द कंजम्पशन जस्ट इन केस यू आर हैविंग दैट 1 कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग जस्ट टू किक स्टार्ट योर डे. थर्ड इज डोंट स्ट्रेस. स्ट्रेस इज़ द मेजर डेवेस्टेटिंग फैक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. मैं खा नहीं पा रही तो मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस है, मुझे लेथार्जी हो रही है तो मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस है, मेरे ऑफिस का क्या होगा, मेरे आगे फैमिली का क्या होगा. गाइज दीज ऑल आर नॉर्मल थिंग्स. अगर आप खा नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा नोजिया है, आपको वॉमिटिंग है, दिस इज़ नॉर्मल बिकॉज योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू कोप अप विद द आउटसाइडर थिंग दैट इज़ डेवलपिंग इनसाइड. सो दैट्स व्हाट. तभी आपको नोजिया होता है, तभी आपको वॉमिटिंग होती है. इनफैक्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ अ हेल्दी प्रेगनेंसी. सो आपको ये चीज़ें समझनी होगी. अगर आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील होती है, टेक नैप्स which is absolutely fine. You can take even 2 to 3 naps if you are feeling extra lethargic, but make sure कि उन naps के चक्कर में आपकी रात की नींद हैम्पर ना हो. So just don't stress. आपको ड्राइव पे जाना है, आप ड्राइव कीजिए, स्लोली कीजिए. आपको ट्रैवल करना है, डोंट स्ट्रेस, गो फॉर अ वेकेशन. मेक श्योर दैट यू डू नॉट गो थ्रू अ बम्पी राइड. या जो आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन है दैट इज़ कंफर्टेबल इनफ. ऑफ कोर्स आप जाकर आप बंजी जंपिंग तो नहीं करना चाहेंगे ऐसे टाइम पर. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी करें विदाउट स्ट्रेस करें, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, स्ट्रेस हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. फोर्थ ऑन माई लिस्ट इज डोंट स्टॉप वर्किंग. बहुत सारी दादीज एंड नानीज आस्क यू टू स्टे एट होम वंस यू आर प्रेग्नेंट, बट दिस इज़ अ मॉडर्न एरा एंड वी हैव आर फाइनेंशियल प्रेशर्स टू कोप अप टू. So just in case you're a working mother, do not stop working. You can continue work, but as I have already told you that you have to take care during traveling, you have to make sure that you eat at the right time, make sure that you have to take naps. Even if आपकी job थोड़ा pressure demand करती है, you can actually take up that pressure just because pregnancy is absolutely normal. You have to understand that you are planning a child and child comes with additional responsibilities and even financial responsibilities. अगर आप आज काम करना छोड़ देंगे, it will add to your financial burden. Make sure that you take those leaves during the motherhood, initial motherhood time, so that you can give time to your baby and you can be financial independent as well. So you can please continue your work, you can please continue your office. Do not stop working. Next on my list is do not stop workout. अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें जिम जाना पसंद है या जिन्हें वर्कआउट करना पसंद है, योगा करना पसंद है, मेक श्योर यू कंटिन्यू डूइंग इट. जी हाँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप नई कोई एक्सरसाइज मत स्टार्ट कीजिए. जिस रूटीन की और जिस रिजीम की आपकी बॉडी यूज टू है, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं. उसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज जैसे कि वेट ट्रेनिंग है या फिर एरोबिक्स है, यू माइट हैव टू स्किप दैट. आप योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप योगा के और पोजेस कर सकते हैं. दैट विल रियली हेल्प यू. इनफैक्ट वो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर मैं बात करूँगी आपसे रीजंस फॉर मिसकैरेजेस. बहुत सारे लोगों को लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन जस्ट बिकॉज कि इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं. आई फील मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज नॉर्मल प्रेगनेंसीज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट लास्ट ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन, कैरिंग दैट काइंड ऑफ वेट अलॉन्ग विद यू एंड हैविंग डिफिकल्टी इन प्रॉबेबली स्लीपिंग और सिटिंग और इवन वॉकिंग. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रेगनेंसी अपने आप में एक पर्सनलाइज्ड जर्नी होती है जो कि डिफ़र करती है. बट आपको ये बात समझनी होगी दैट नंबर 1, 80% of the miscarriages are decided by nature's call. Yes guys, ये एक नेचुरल तरीका है कि नेचर डिसाइड करती है दैट द प्रेगनेंसी इज़ नॉट फाइन और द चाइल्ड इज़ मेंटली नॉट फिट और इवन फिजिकली नॉट फिट टू बी ब्रॉट आउट इन दिस वर्ल्ड. 80% ऑफ प्रेगनेंसीज इसीलिए अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती हैं. टर्मिनेशन और अबॉर्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेम इन मेडिकल टर्म्स. बट आपको ये समझना होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ नेचुरली होता है सो दैट इज़ हैपनिंग फॉर गुड जस्ट बिकॉज दैट इज़ अ नेचर्स कॉल टू मेक श्योर दैट एनी रॉन्ग बेबी और एनी रॉन्ग डेवलप्ड चाइल्ड shall not come in this world. Number 2 is accident. Any accident that happens can lead to miscarriage.
आपको इसीलिए मैंने बोला दैट इवन इफ़ यू आर ड्राइविंग, you are traveling, you have to make sure that you do not go through bumpy rides just because बहुत ज़्यादा झटके हमारी बॉडी में, क्योंकि बेबी का जो प्लेस है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है वूम में, इसीलिए देर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा बम्पी राइड से वाइल ट्रैवलिंग और वाइल एनी एक्सीडेंट यू माइट एंड अप getting a problematic pregnancy. So make sure you avoid any kind of bumpy ride or so. And the third reason for miscarriages is a state of stress or shock. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है एक मदर, या बहुत अचानक से उनको कोई शॉक मिलता है मेंटली, सो दिस माइट बी द रीजंस ऑफ मिसकैरेज. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदरवाइज द प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नॉर्मल स्टेट ऑफ योर बॉडी, एंड you have to stay healthy and you have to stay fit by eating a proper diet and by taking proper rest. So I hope मैंने आपके most of the questions के answers दे दिए होंगे of how to take care in first trimester. So just in case you're looking for the further information, do follow me for the second video that I'll be doing on how to take care of second trimester of pregnancy. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye bye.